So in this class, we are going to understand the process of design of spur gear. So in this process, there are certain 3-4 steps. So first step is decide the beaker. There are two gears. One is pinion, one is gear. One is the smaller gear, which we are saying pinion. So we have to decide which is weaker. That this is the pinion, this is the gear. Pinion is having Z1 number of teeth, it is having Z2 number of teeth, diameter this is D1, PCD of this gear is D2, and all the parameters are different. This is the pitch point, and from which point there is pitch line velocity V, and it is rotating anti-clockwise at some speed let N1, it is rotating clockwise some speed at N2. So many parameters. We have to decide which is weaker. If pinion is weaker, then pinion will be the criteria of design. If gear is weaker, then gear will be the criteria of design. So in deciding the weaker, there are two cases. First case is case 1, when both are made of same material. When pinion and gear both are made of same material, then pinion is always weaker. It is a thumb rule. Pinion is always weaker. And why it is thumb rule? Because we know that beam strength is given by md sigma b by. तो मान लीजिए कि हम बीम स्ट्रेंथ पीनियन के लिए कैलकुलेट करें, मॉड्यूल और गियर के लिए कैलकुलेट करें. Correct? That this is the beam strength for the pinion SBP and this is the beam strength for the gear SBG. तो जिसका भी beam strength कम होगा वही weaker होगा, है ना? The gear for जिसके लिए SB is less, that will be the weaker. तो जरा देखें, मॉड्यूल is common to both. मैचिंग तो तभी पॉसिबल है जब दोनों के मॉड्यूल बराबर होंगे. So this parameter is constant. Phase width is also constant. It is given by 10 times module. It is just empirical relation, or phase width is kept between 8 m to 12 m. You can assume the phase width between 8 m to 12 m. लेकिन जो भी assume करेंगे वो दोनों के लिए same है. For the pinion also, for the gear also. Now the third parameter is sigma b. Sigma b is the bending stress. Bending stress is given by SUT divided by 3. Bending stress is given by SUT divided by 3, and this relationship is suggested by the scientist Earle Buckingham. The name of the scientist is Earle Buckingham. Earle Buckingham suggested the bending stress can be taken as 1/3 of SUT. Decide the के बाद क्या लिखा है सर ये? क्या कह रहे हैं? Decided the step 1. हाँ, अभी स्टेप 1 ही चल रहा है. डिसाइड द बीकर. हम बीकर 1 की बात कर रहे हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे. तो जिसके लिए बीम स्ट्रेंथ कम होगी वो बीकर होगा. अब हम केस 1 ले रहे हैं when both are made of same material. फिर केस 2 लेंगे when both are made of different material. तब बीकर कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले केस में बात कर रहे हैं when both are made of same material. तो सिग्मा बी और सिग्मा बी ये दोनों भी सेम हो जाएंगे because they are made of same material. मान लीजिए ये भी कास्ट आयरन का बना है, ये भी कास्ट आयरन का बना है, तो दोनों के लिए सिग्मा बी की वैल्यू SUT/3 से सेम ही हो जाएगी ना. SUT तो कॉमन हो जाएगी दोनों के लिए. सिमिलरली if this is made of steel, this is made of cast iron, or this is made of plain carbon steel, this is made of alloy steel, then the materials are different. In that case SUT is different, SUT/3 will also be different, so sigma b will also be different for both pinion and gear. So पहले केस में बात कर रहे हैं sigma b will be same because both are made of same material, and the tooth factor. So tooth factor के बारे में डाटा बुक में जो टेबल है उस टेबल से आप देख सकते हैं कि Z और Y के बीच में टेबल होती है, Z एंड Y. ठीक है, एक होता है नंबर ऑफ टीथ और एक होता है टूथ फैक्टर. तो उस टेबल के बारे में जरा सा बात कर लूं आपसे. डाटा बुक में आपको टेबल मिलेगी और वो प्रोफाइल वाइज मिलेगी, है ना.
तो पहले आप जब 14.5 डिग्री की प्रोफाइल हो, चाहे 20 डिग्री की प्रोफाइल हो, चाहे 20 डिग्री स्टफ टूथ की प्रोफाइल, 20 डिग्री की स्टफ टूथ, तो देयर विल बी टेबल बिटवीन z एंड द y, for 20 degree also between z and y, for 20 degree st also between z and y. So first to decide the profile, then see the table. When you will see the table, you will observe as the number of the teeth increases, the value of the y also increases for each and every profile. So z is increasing, y is increasing, z is increasing, y is increasing for each and every profile. So z means number of teeth, and number of the teeth on the gear is always higher. Pinion is a smaller gear, so pinion is always having a smaller number of teeth, less number of teeth. That's why the Lewis factor for the pinion is always less. So this y is less for pinion, this y is greater for gear. So in that case, because y is less, then beam strength will be less, then pinion is always weaker. देखा से क्लियर हो गया होगा, है ना? तो मटेरियल सेम होंगे, आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि पिनियन इज ऑलवेज वीकर। तो पिनियन को डिजाइन करना है, पिनियन विल बी द क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन। गियर को डिजाइन नहीं करेंगे उस केस में। इफ पिनियन इज सेफ, देन गियर इज ऑलरेडी सेफ, बिकॉज गियर इज हैविंग मोर सस्टेनेबल लोड, है ना? गियर कैन सस्टेन मोर लोड बिकॉज द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द गियर इज हायर। अब बात करते हैं केस 2 पर। अब मान लीजिए केस 2 में both are made of different material, तो उस केस में कैसे डिसाइड करेंगे? SP for the pinion is again mg sigma by, for the gear mg sigma by, ठीक है? अब देखिए m is common, मॉड्यूल तो सेम ही होगा, चाहे दोनों मटेरियल डिफरेंट हो, फिर भी मॉड्यूल विल बी सेम, फेस विल आल्सो बी सेम, सिग्मा b विल बी डिफरेंट, है ना? सिग्मा b विल बी डिफरेंट। सो सिग्मा b को मैं नाम दे देता हूं, लेट सिग्मा b फॉर द पिनियन सिग्मा bp and sigma b for the gear sigma bg, p for pinion, g for gear. So sigma b is different, tooth factor is also different because number of the teeth are different, so I am giving name like yp, tooth factor for pinion, tooth factor for gear, and this product, this is first product, this is the second product. The gear for the, if this product is less for pinion, then pinion will be weaker. If this product is less for gear, then gear will be weaker. So this product will decide the weaker. ठीक है? तो weaker वाली बात में कोई डाउट तो नहीं है, दोनों सेम मटेरियल की है, pinion is always weaker. इस डिफरेंट मटेरियल के हैं तो कोई भी weaker हो सकता है, pinion भी weaker हो सकता है, gear भी weaker हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेस है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि कौन सा गियर वीकर है, और वीकर निकालने के लिए हम इस प्रोडक्ट पे बात करेंगे। ये तो दोनों डिफरेंट मटेरियल के हैं। सेकंड रिपीट करना एक बार। सर टॉपिक का नाम बताना सर, सर टॉपिक का नाम बता दो सर। हाँ मुझे बोलें क्या कह रहे हैं? टॉपिक का नाम बता दो सर। प्रोसेस ऑफ डिजाइन ऑफ द गियर, पहले ही लिखा था मैंने बोर्ड पे। सर एक बार केस सेकंड रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया सर। हाँ एक बार फिर से देख लीजिए, कल का था मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आपने अभी ज्वाइन किया है क्लास को? नहीं सर, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से। हाँ देखिए फिर से समझिए, प्रोसेस ऑफ डिजाइन में सबसे पहला स्टेप है डिसाइड द वीकर, डिसाइड द वीकर। अब इसके अंदर दो केस हैं। पहला केस व्हेन बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, बोथ मतलब पिनियन एंड गियर बोथ मेड ऑफ सेम मटेरियल। सर सेकंड वाला कर दो, पहला तो आ गया समझ में। पहला समझ में आ गया ना, तो सेकंड वाले को बता रहा हूं, बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल देन पिनियन विल बी वीकर, है ना? केस 2 when both are made of different material, है ना? different material। तो different material के केस में हम क्या करेंगे? बीम स्ट्रेंथ को कंपेयर करने जा रहे हैं। हम बीम स्ट्रेंथ को यहां भी कंपेयर कर रहे थे, तो पहले वाले केस में मॉड्यूल, फेस विड्थ और सिग्मा भी तीनों बराबर हो गए थे दोनों के लिए, पिनियन के लिए और गियर के लिए, तीनों की वैल्यू बराबर हो गई थी। ठीक है? तो केवल y विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। तो पिनियन के लिए y हमेशा कम होता है, इसलिए पिनियन इज वीकर। पहला केस बिल्कुल क्लियर है। दूसरे केस में क्या है? मॉड्यूल और फेस विड्थ तो बराबर है दोनों के लिए, पिनियन के लिए भी और गियर के लिए भी। अब ये जो पैरामीटर है सिग्मा भी डिफरेंट है दोनों के लिए, y डिफरेंट है दोनों के लिए, तो ये प्रोडक्ट ही डिसाइड करेगा सिग्मा b into y फॉर द पिनियन, सिग्मा b into y फॉर द गियर,
if this is less then Pn is weaker, or if it is greater then gear will be weaker. तो बहुत आसान चीज है कि हमें बीम बेंडिंग स्ट्रेस और टूट फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है ना, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट पिनियन के लिए भी निकालना है, प्रोडक्ट गियर के लिए भी निकालना है। यदि प्रोडक्ट पिनियन का कम है तो पिनियन भी करें, और यदि प्रोडक्ट गियर का कम है तो गियर भी करें। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट विल डिसाइड द वीकर। चलिए अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप पर। तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर, प्रोसेस का सेकंड स्टेप जो है फाइंड द मॉड्यूल। फाइंड द मॉड्यूल। मॉड्यूल फाइंड करने के लिए जो भी हमारी बीम स्ट्रेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन इफेक्टिव लोड कमिंग ऑन द गियर। फॉर द सेफ डिजाइन the beam strength must be greater than from the effective load coming on the gear. This is the condition for the safe design. इस कंडीशन का हम यूज करेंगे और हम मॉड्यूल को फाइंड कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा डिराइव कर देते हैं। SV कैन बी रिटन एज, या SV को भी हम लिख लेते हैं इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय P फैक्टर। SV के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है LB सिग्मा B by फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या तो अज्यूम करेंगे या क्वेश्चन में दे रखा होगा। P इफेक्टिव के लिए हमारे पास फार्मूला है PT into CS divided by CB। PT is the tangential force, हमने फोर्स एनालिसिस ऑलरेडी करी है 2-3 क्लासेस में। PT is the tangential force. PT can be found by 2mP divided by T। यदि पिनियन वीकर है तो पिनियन का डायमीटर लिया जाएगा, पिनियन का टॉर्क लिया जाएगा। गियर वीकर है तो गियर का टॉर्क लिया जाएगा, गियर का डायमीटर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पीटी तो सेम ही होता है, चाहे पिनियन हो चाहे गियर हो, तो पीटी विल बी सेम, एक तरह से सेम ही होगा। आप निकाल किसी से भी लो, फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, डायरेक्शन में अपोजिट होती है। सीएस सर्विस फैक्टर है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी कि स्टार्टिंग टॉर्क कितना ज्यादा है, 1.5 गुना है तो 1.5 हो जाएगी, 2 गुना है तो 2 हो जाएगी। सर्विस फैक्टर डिसाइड क्वेश्चन की लैंग्वेज से होगा, ठीक है। सीबी वेलोसिटी फैक्टर है ना, यदि वेलोसिटी के चेंज होने से लोड इंक्रीज हो रहा हो तो फिर हम वेलोसिटी फैक्टर का यूज करेंगे। वेलोसिटी फैक्टर के लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, 3/3 + v, 6/6 + v, है ना, या 10/10 + v। ये सब डाटा उसमें दिए होते हैं वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, तो वो हम उससे डिसाइड करेंगे। यदि वेलोसिटी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो इनिशियल स्टेज पर वेलोसिटी को 5 मीटर/सेकंड मान करके हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है mg सिग्मा b by fs pt cf। इसमें लगभग सारी चीजें गिवन होती हैं, केवल मॉड्यूल ही अज्ञात होता है, तो इसकी हेल्प से हम लोग मॉड्यूल कैलकुलेट कर लेंगे। So step 2 is now complete. First step decide the weaker, second step find the module by this condition, safe design condition, ठीक है। अब थर्ड step 3 is selection of module। selection of module। अब सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल मींस मान लीजिए मॉड्यूल आपका आया समथिंग, कोई भी एग्जांपल ले लो 3.23 आ गया, ठीक है। तो मॉड्यूल को हम जनरली डेसिमल्स में नहीं रखते हैं, वी विल इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ हम अपने तरीके से नहीं करेंगे, वी विल रेफर द डाटा बुक टेबल। इन डाटा बुक टेबल देयर इज ए टेबल इन व्हिच द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूल्स आर गिवन, है ना। जैसे मॉड्यूल की वैल्यू पहले 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 6 है ना, 7 है, 8 है, 8 के बाद सीधे 10 है, ठीक है। तो 3.23 आ रहा है तो हम अगली वैल्यू पे चले जाएंगे, यानी 4 पे चले जाएंगे। और यदि 8.23 होता है तो 8.23 के बाद अगली वैल्यू 10 पे चले जाएंगे, 9 पे नहीं जाएंगे। जो भी डाटा बुक में नेक्स्ट वैल्यू होगी उसी को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी स्टैंडर्ड मॉड्यूल के गियर्स मार्केट में बनते हैं। तो गियर्स की एक्सचेंजेबिलिटी के लिए कभी किसी गियर में प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत चेंज करने में इजी रहता है। यदि आप अपना मॉड्यूल डिसाइड करेंगे जो स्टैंडर्ड नहीं है तो आपके रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, हाँ, और मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज आल्सो स्टेप नंबर 3। वेरी 3 स्टेप हो गए। तो अब इसके बाद लास्ट स्टेप होता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गियर। तो स्टेप नंबर 4 फाइंड द डायमेंशंस। फाइंड द डायमेंशंस, है ना। इसको स्टेप 5 ले रहा हूं मैं। स्टेप 4 में हम डिजाइन को एक बार चेक भी करते हैं।
चेक द डिजाइन, हमें जो भी डिजाइन होकर के फाइनल आंसर आए वो हमारी डिजाइन सेफ है या नहीं, है ना, उसको चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करने में क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमारा ज्यादा आ रहा है, इट मींस डिजाइन इज सेफ, कम आ रहा है देन डिजाइन इज अनसेफ, तो उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो डायमेंशन फाइंड करने में कुछ नहीं है, पीसीडी ऑफ द गियर निकाल सकते हैं, पीसीडी ऑफ द पिनियन, पीसीडी ऑफ द गियर, फॉर्मूले सबको पता है, mz1 इसका होता है, mz2 इसका होता है, मॉड्यूल ऑलरेडी निकल चुका है, टीथ ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं, देन यू कैन फाइंड d1, यू कैन फाइंड d2, d1 d2 आ जाएगा। उसके बाद आपको अडेंडम चाहिए, अडेंडम निकाल सकते हैं। अडेंडम के लिए डाटा बुक में प्रोफाइल वाइज टेबल है, 14.5 डिग्री, 20 डिग्री, तो अडेंडम निकाल दीजिए, डिडेंडम निकाल लीजिए, है ना, क्लियरेंस निकाल लीजिए, टूथ थिकनेस निकाल लीजिए, टूथ स्पेस निकाल दीजिए, सारा ऑल द वैल्यूज यू कैन फाइंड, तो आपको सारी की सारी डायमेंशंस मिल जाएगा। हाँ, मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये 5 स्टेप हो गए, है ना। तो एक बार फिर से मैं जरा रिवाइज कर दूं। पहला स्टेप, डिसाइड द वीकर, ठीक है, सेम मटेरियल के लिए तो पिनियन इज ऑलवेज वीकर, डिफरेंट मटेरियल के हैं तो प्रोडक्ट विल डिसाइड, किस किस का प्रोडक्ट, बेंडिंग स्ट्रेस और टूथ फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड करेगा कि कौन वीकर है। तीसरा स्टेप है फाइंड द मॉड्यूल, तो मॉड्यूल के लिए सेफ डिजाइन की कंडीशन है बीम स्ट्रेंथ मस्ट बी greater than equal to the effective load coming on the gear. Once the module is known, you can select the module from the data book. So next step is selection of the module, and last step is check for design and find the dimension of gears. चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी स्टेप थोड़ा सा रिवाइज हो जाएंगे। तो आई एम टेकिंग ए न्यूमेरिकल नाउ, प्रोसेस ऑफ डिजाइन इज क्लियर। So I am taking question number 17.8. It is given on page number 669. Good question to understand the design of gear. तो देखिए, it is required to design a pair of spur gears with 20 degree full depth involved profile. तो given data में हम लिख सकते हैं alpha is 20, ठीक है, alpha is 20, फुल डेप्थ लिखा हुआ है ना, फुल डेप्थ, यदि स्टब टूथ लिखेगा तो फिर हमको साथ में एसटी लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें आगे लिखता है 20 टीथ पिनियन कंसिस्टिंग ऑफ 20 टीथ पिनियन, इसका मतलब पिनियन में जो टीथ हैं वो 20 है, मैशिंग विथ 50 टीथ गियर, Z2 बराबर 50, ठीक है, 20 और 50। अच्छा, 20 डिग्री प्रोफाइल में मिनिमम टीथ कितने चाहिए इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए, 18, 18 से ज्यादा ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। मान लीजिए कभी कभी टीथ क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से अजम्पशन ले सकते हैं, यू कैन टेक Z1 इक्वल टू 18, 18 से स्टार्ट करिए, यदि 18 पे डिजाइन सेटिस्फैक्टरी हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर आप 18 के आगे जा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अच्छा है कि हमें क्वेश्चन में ही टीथ दिए हुए हैं। सो 20 इज गिवन, Z2 is 50. The pinion shaft is connected to a 22.5 kilowatt 1450 RPM motor. So power is given 22.5 kilowatt power is given, and RPM is also given 1450 RPM. ये किसके दिया हुआ है, पिनियन का या गियर का? क्वेश्चन की लैंग्वेज है द पिनियन शाफ्ट इज कनेक्टेड टू इट, इसका मतलब ये पिनियन के बारे में इंफॉर्मेशन है। Power and RPM, this is the information about the pinion, so I can give N1 over here, N1 लिख सकता हूँ। पावर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, that's why power is kept constant throughout। हम लोग मान के चलते हैं कि there is very little power loss, तो पावर को हम इक्वल अज्यूम करके आगे, हाँ, फ्रिक्शन लॉस को कंसीडर करें बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो उनसे हमारी कैलकुलेशन में बहुत अंतर नहीं आता। इसी वजह से इस पर गियर्स की जो एफिशिएंसी है वो 99% से भी थोड़ी ज्यादा ही होती है ना, काफी ज्यादा होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर कैन बी टेकन एज 150% ऑफ द रेटेड टॉर्क। तो सर्विस फैक्टर 150/100 हो गया है ना, स्टार्टिंग टॉर्क बटे एवरेज टॉर्क, है ना, इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय मीन टॉर्क या एवरेज टॉर्क, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है कि 150% ज्यादा है, इसका मतलब ये 150 है, ये 100 है तो 150 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.5।
सर्विस फैक्टर 1.5। अच्छा बताओ क्राइटेरिया क्या होगा हमारे डिजाइन का, मीन टॉर्क क्राइटेरिया होगा या स्टार्टिंग टॉर्क क्राइटेरिया होगा? द टॉर्क विच इज मोर विल बी द क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन, है ना। तो जो हमें फॉर्मूलों से टॉर्क मिलता है, जो हम लगाते हैं 60 10⁶ किलोवाट डिवाइडेड बाय 2 पाई है, ये जो फॉर्मूलों से हमें टॉर्क मिलता है ये हमेशा एवरेज टॉर्क होता है ना, ये मीन टॉर्क मिलता है। और यदि टॉर्क हमारा 1.5 गुना है तो फिर हमें सर्विस फैक्टर का यूज करना पड़ेगा, या फिर हम सर्विस फैक्टर यूज नहीं कर रहे हैं तो टॉर्क में मल्टीप्लाई करिए उतने सर्विस फैक्टर, बात वही पड़ती है ना। तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, P इफेक्टिव इज गिवन बाय PT into CS, तो CS 1.5 है ना, तो गियर में आने वाला जो लोड है वो 1.5 गुना हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 गुना, तो उसको हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो सर्विस फैक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। द मटेरियल फॉर द पिनियन इज प्लेन कार्बन स्टील Fe 410, पिनियन का मटेरियल दिया हुआ है। तो पिनियन की बात करते हैं, या लिख लेते हैं पिनियन का मटेरियल है Fe 410, ठीक है, डिजिग्नेशन। और SUT इसकी दे रखी है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, SUT is 410 Newton per mm square. This is the SUT mentioned over here. अब देखें आगे लिखा है while the gear is made of grey cast iron. अच्छा, गियर का मटेरियल डिफरेंट है, गियर इज मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन Fg200, तो इसकी SUT कितनी हो गई 200 न्यूटन पर mm, करेक्ट। दोनों की मटेरियल डिफरेंट है, तो ये केस सेकंड हो गया। तो जब मटेरियल डिफरेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट विल डिसाइड द वीकर, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो वीकर को डिसाइड करेगा। तो चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिग्मा बी निकालते हैं, पहले पिनियन के लिए निकालते हैं। तो सिग्मा बी कितना हो जाएगा 410/3, है ना, SUT/3 410/3, ये तो हो गया पिनियन के लिए। गियर के लिए बेंडिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा 200/3, ठीक है। अब टूथ फैक्टर, तो y की वैल्यू पिनियन के लिए, पिनियन पर टीथ कितने हैं 20, तो डाटा बुक में जाइए और 20 टीथों के लिए कितना लुईस फैक्टर है ये फाइंड करिए। तो सभी के पास डाटा बुक है, जरा खोल के बताओ कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 0.20 0.320, 320 वेरी गुड। सो इट इज गिवन 0.320 फ्रॉम डाटा बुक। और इस गियर के लिए बताइए, गियर पे टीथ है 50, तो 50 टीथों के लिए कितना फैक्टर है 0.408 0.408, वेरी गुड। ये 20 डिग्री प्रोफाइल के लिए आपने। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, 400/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.32 कितना आ रहा है, और ऐसे इसका प्रोडक्ट कर दीजिए 200/3 into 0. सर सिग्मा भी आ रहा है 43.73 और इसका गियर का भी बताइए। सर ये y की वैल्यू क्या ली है 0.408 लिया ना आपने? हाँ 0.408, यस 0.408, सर ये आया 27.2। 27.2। अब देखिए किसकी वैल्यू लेस है 43 and 27, so 27 is less, 27 लेस है। it means the product for the gear is less, so gear is weaker। यहां पे लिख दीजिए since sigma b into y for the pinion is greater than sigma b into y for the gear, hence gear is weaker, gear is weaker। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को एग्जाम में आप लिखते हैं और ये लाइन सही लिखी है आपने, यू विल गेट 1 mark 1.5 marks। मतलब आपने वीकर फाइंड कर लिया, मींस यू हैव डन समथिंग, है ना। उसको लिखना है, मन में मत समझ लेना कि हमने मन में मान लिया गियर वीकर, यू राइट इट इन द एग्जाम, है ना, हेंस गियर इज वीकर। सो हमारा एक स्टेप पूरा हो गया, हमारा गियर वीकर है ना। पिनियन की देखो SUT ज्यादा है, उसका टूथ फैक्टर कम है, इसकी SUT कम है, इसका टूथ फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट कम आ रहा है गियर के लिए, तो गियर वीकर।
चलिए गियर बीकर हो हमारा डिसाइड हो गया। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया पूरा, और देख लेते हैं क्या दिया है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, fs is also given 1.5, यहाँ लिख लेते हैं fs is 1.5। डिजाइन द गियर बेस्ड ऑन द लुईस इक्वेशन, ठीक है, तो लुईस इक्वेशन वही है mb सिग्मा b बाय, यही तो लुईस इक्वेशन है। तो बस ऑन द गियर की डिजाइन में लुईस इक्वेशन ही ज्यादा फॉलो होती है ना। तो लुईस इक्वेशन के बेस पे हमको डिजाइन करना है, और यूजिंग वेलोसिटी फैक्टर टू अकाउंट फॉर द डायनामिक लोड, ठीक है, वेलोसिटी फैक्टर को अकाउंट करना है। तो वेलोसिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है ना, सबसे पहले वेलोसिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो वेलोसिटी फैक्टर जरा सा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी फैक्टर को इंक्लूड करना है ना। यूजिंग वेलोसिटी फैक्टर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो मेथड होती है, एक वेलोसिटी फैक्टर को लेके और एक और होती है जिसमें हम डायनामिक लोड को अर्ले बकिंघम के थ्रू, एक इक्वेशन है उसको भी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम वेलोसिटी फैक्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो वेलोसिटी फैक्टर में सबसे पहले हमको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, पिच लाइन वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वेलोसिटी फैक्टर पिच लाइन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो पिच लाइन वेलोसिटी इज गिवन बाय पाई डी एन बाय 60, पाई डी एन बाय 60, है ना। यदि पिनियन के लिए बात करेंगे तो हम इसको पाई डी वन n1 कर सकते हैं, गियर के लिए बात करेंगे तो पाई डी टू n2 कर सकते हैं। दोनों से सेम आंसर आएगा, क्योंकि पिच लाइन वेलोसिटी दोनों के लिए बराबर होती है ना, वो कॉमन पॉइंट होता है ना, इसलिए पिच लाइन वेलोसिटी अलग अलग नहीं होती, ये कॉमन पॉइंट होता है। तो ये पिच लाइन वेलोसिटी चाहे पिनियन के लिए हो चाहे गियर के लिए, बात बराबर आएगी दोनों से, है ना। तो किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पाई डी वन n1 60 से निकाल सकते हैं, या फिर पाई डी टू n2 बाई 60 से भी निकाल सकते हैं, दोनों से बराबर आंसर आएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करें, पाई d1, बताओ क्या हमें d1 गिवन है? नहीं है सर, नहीं है, d1 is not given in our question। तो जब डायमीटर गिवन ना हो डेटा तो डायमीटर को क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, mz1 से, mz1 से तो निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, अब mz1 में z1 तो पता है 20, लेकिन मॉड्यूल नहीं मालूम है, इसलिए गियर डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। मतलब अब पैरामीटर्स आपस में उलझ जाते हैं, जो चीज निकालनी है उसी का यूज आ जाता है पहले, है ना। और वेलोसिटी फैक्टर को काउंट करना ही करना है। तो वेलोसिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज डाटा इज इनकम्प्लीट, वेलोसिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो इन दैट केस वी टेक अजम्पशन, है ना। यदि वेलोसिटी कैलकुलेट हो पा रही हो, आप कैलकुलेट करिए, फिर कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, देन यू कैन टेक अजम्पशन। सो इनिशियल अजम्पशन इज 5 मीटर पर सेकंड, ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन माना गया है कि शुरुआत आप 5 मीटर पर सेकंड से कर दीजिए गियर की डिजाइन। सर 5 से क्यों करना सर, 6 से भी तो कर सकते हैं सर। नहीं, 6 से नहीं, गियर की डिजाइन में जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उनमें स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसको हम 5 से स्टार्ट करते हैं ना। 6 भी कर सकते हैं, जो क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं वो 5 to 10 के होते हैं बीच में, तो 5 पे भी वही फॉर्मूला लगता है, 6 पे भी वही फॉर्मूला लगता है। तो आप 6 भी करेंगे तो फॉर्मूले में अंतर आपका नहीं आएगा, बट स्टार्ट विथ 5। सो हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया, 5 मीटर पर सेकंड, ये अजम्पशन है, ब्रैकेट में लिख दीजिए अज्यूम, ठीक है। ये हमारा क्या है, अजम्पशन। अब देखिए, जैसे मैंने वेलोसिटी को 5 मीटर अज्यूम किया, मैंने डाटा बुक में गया, डाटा बुक में मैंने वेलोसिटी फैक्टर का फॉर्मूला देखा और वहां फॉर्मूला मुझे मिला। आपको चेक करो क्या फॉर्मूला आ रहा है, मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला होगा 3/3 + d। सब लोग अपनी अपनी डाटा बुक में देखें क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी फैक्टर के। ये सर हाँ, अज्यूम कर लिया। अब देखो अज्यूम किया तो ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हमारा अजम्पशन ही तो है। लेकिन अजम्पशन करने के बाद जब हम डिजाइन को चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं और हमारा डिजाइन सेटिस्फैक्टरी मिल गया, तो फिर ये कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फैक्टरी है ना। और यदि आपको ज्यादा के लिए डिजाइन करना है तो फिर क्वेश्चन में इनपुट होना चाहिए, है ना। यदि क्वेश्चन में इनपुट नहीं है तो फिर हम 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिजाइन कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, 3/3 + b, यही फॉर्मूला आ रहा है डाटा बुक में, है ना। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं 3/3 + 5 3/8 सर 0.375 0.375, ये हमारा सीवी हो गया, ठीक है। चलिए वेलोसिटी फैक्टर हमने समझ लिया। अब हम
मॉड्यूल निकालेंगे। मॉड्यूल के लिए क्या कंडीशन है, तो अब हमारा स्टेप चलेगा फाइंड द मॉड्यूल, है ना, फाइंडिंग द मॉड्यूल। दिस इज माय स्टेप नंबर 2। तो बिल्कुल अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल डायरेक्टली राइट एसबी इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी पीटी सीएस डिवाइडेड बाय सीबी। इन प्लेस ऑफ एसबी आई विल राइट एमबी सिग्मा बीटी बाय एफएस पीटी, है ना, पीटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, पीटी इज गिवन बाय 2mt डिवाइडेड बाय डी। mt कैन बी फाउंड, mt is 60 10 to the power 6 kilowatt, kilowatt is 22.5 whole divided by 2 by n1, n1 is how much, n1 1450। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है यूनिट के साथ, यूनिट इज न्यूटन mm। कैलकुलेटर है आपके पास, सॉल्व इट। 3704446.85 बोलिए एक बार फिर से बोलिए। 3704446.85 न्यूटन 446.85 न्यूटन mm। वेरी गुड, क्रॉस चेक कर लीजिए, यही आंसर है, राइट। तो एमटी इज ओवर नाउ 2 टाइम्स 3704446.85 divided by diameter of the pinion। So diameter of the pinion is mz1, है ना, z1 is 20, so I will write m into 20। d1 is mz1, m is unknown, z1 is 20, है ना, मॉड्यूल को हमें फाइंड करना ही करना है। सो पीटी की इस वैल्यू को जरा बताइए कितनी आ रही है, दिस इनटू दिस डिवाइड बाय 20। ये आइए 3.073। 20 से डिवाइड करना है, एक पॉइंट इधर आ जाएगा बस, 37044.68 डिवाइडेड बाय 10, ये आ रहा होगा 37,044.68 डिवाइडेड बाय m। इस पीटी की वैल्यू को यहां ट्रांसफर कर दो, 37044.68 डिवाइडेड बाय m, ये हमारी पीटी की वैल्यू है। सर्विस फैक्टर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1.5। वेलोसिटी फैक्टर हमने कितना कैलकुलेट किया है, 0.375, पुट वैल्यू 0.375, ठीक है। इधर भी वैल्यू रख दो, m की वैल्यू, m तो अननोन है, b की वैल्यू 10m, सिग्मा b किसके लिए लोगे बताओ, सिग्मा b गियर के गियर लिए या पिनियन के लिए, किसके लिए लोगे, गियर गियर सर गियर गियर, बिकॉज़ गियर इज वीकर, गियर इज वीकर, तो गियर के लिए सिग्मा बी लिया जाएगा। फुल फैक्टर किसके लिए लोगे, वो भी गियर के लिए लोगे, ठीक है। तो सिग्मा बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 200/3, ऐसा से 200/3 थी, तो मैं लिखता हूं 200/3, और टूथ फैक्टर आप लोगों ने कितना बताया था गियर के लिए, 0.408, है ना, 0.408। सो दिस इज 0.408 इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1.5, ठीक है, इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस, वही सेम रिपीट कर दो, तो ये हो गया 37044.68 1.5 होल डिवाइडेड बाय m इनटू होल डिवाइडेड बाय m इनटू 0.375, ठीक है। चेक कर लो, मैंने वैल्यूज पुट कर दी सारी। अब आप इस इक्वेशन में देखिए, ओनली m इज द अननोन पैरामीटर, ठीक है, और m की पावर क्या आएगी, देखो m इंटू m, m स्क्वायर, और एक m नीचे भी है डिनोमिनेटर में, तो ये m भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो m पावर 3। सो दिस इज बेसिकली ए क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज बेसिकली ए क्यूबिक इक्वेशन। सो इट विल गिव यू 3 वैल्यूज ऑफ द मॉड्यूल। यदि आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर्ली तो आपको 3 आंसर मिलेंगे मॉड्यूल के। हाँ, अब वो हो सकता है कि एक रियल आंसर हो और बाकी इमेजिनरीज हो, इमेजिनरी आंसर हो, तो आपको रियल आंसर इसमें से ले लेना है, रियल एंड पॉजिटिव, यू हैव टू टेक रियल एंड पॉजिटिव। तो जरा इसको सॉल्व करिए और बताइए m क्यूब कितना आ रहा है, व्हाट इज m क्यूब।
सर एम की वैल्यू 6.8 आ रही है। एम की वैल्यू, अच्छा ठीक। एम क्यू कितना आ रहा है पहले आप ये बता दो हमें। पावर 3 कर दो, मेरे 6.8 आ गया है। देखो बुक में तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लगाया हुआ है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है सर? हाँ, एम क्यू कितना आ रहा है? 333.4 333.4 एंड m इज क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका क्यूब रूट कर दीजिए 6.9 6.89 mm। चलिए मॉड्यूल आ गया। अब अगला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, तो डाटा बुक में जाइए और वहां देखिए कि मॉड्यूल की सिलेक्शन में अगली वैल्यू क्या है। 6.89 से अगली वैल्यू, यदि 7 है तो 7 लीजिए, 8 है तो 8 लीजिए, है ना। जो भी वैल्यू आ रही है वो आप देख के बताइए डाटा बुक से। 7 आ रही है, 7। 7 है, so m equal to 7, तो 7 इज लॉग्ड, मॉड्यूल इज 7। ठीक है, मॉड्यूल 7 हो गया। अब 7 मॉड्यूल होने के बाद डायमेंशन निकाल लो गियर की, है ना। जब मॉड्यूल निकल जाता है फिर तो सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो मैं जरा रब कर रहा हूं इसको। हैव यू नोटेड? सर 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ मैं रुका हुआ हूं, फर्स्ट यू नोट इट। हो गया सर। गुड। तो आप देखिएगा ध्यान से, मॉड्यूल निकल चुका है। मॉड्यूल निकल चुका है, मॉड्यूल सेलेक्ट हो चुका है ना। फाइंडिंग मॉड्यूल, सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज ओवर। नाउ डायमेंशन ऑफ द गियर्स, डायमेंशन ऑफ गियर्स। तो गियर की डायमेंशन में पिनियन के लिए D1, गियर के लिए D2, इंपॉर्टेंट है। सो D1 होता है MZ1, M हमारा आ गया 7, फाइनल आंसर है ना। 6.89 नहीं लेकिन 7। Z1 हमारे टीथ थे 20 to 7, 140 mm। 140 mm is the diameter of the pinion. Now MZ2, M value 7, Z2 value 50, 5 7 is 35, so it is 350 mm. 350 D2 की वैल्यू। ठीक है, D1 मिल गया, D2 मिल गया। ठीक है, और क्या चाहिए? बाकी सब चीजें निकाली जा सकती हैं, अडेंडम डिडेंडम सब निकाला जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग उनको जब ही निकालते हैं जब हमें कोई ड्राइंग बनानी हो। अन्यथा D1 D2 मेन पिक्चर के डायमीटर्स हम लोग दिखा करके, और ज्यादा से ज्यादा दिखाओ तो फेस विड्थ दिखा दो। फेस विड्थ कितनी होती है? 10 है, हमने अज्यूम भी करी थी। सो इट इज 10 into 7, so it is 70 निकल गई डायमेंशन। ठीक है, अब आपने डिजाइन कर लिया, बट क्या डिजाइन सेफ है? वो एक बार चेक, क्योंकि अच्छा चेक क्यों करना पड़ेगा? यदि हम कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करते, मान लीजिए कोई राउंडिंग ऑफ वगैरह नहीं करते, तब तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर उतना ही आ जाता 1.5। लेकिन चीजों के राउंडिंग ऑफ करने से फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे फिर फर्क पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। तो जस्ट हमको ये चेक करना है कि हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है क्या वो 1.5 से कहीं कम तो नहीं हो गया। यदि वो 1.5 से ऊपर है, इट मींस द डिजाइन इज स्टिल सेफ। डिजाइन इज स्टिल सेफ, अभी भी सेफ। सर कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर आपने ये 10 मीटर में 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो 70 mm क्यों आ रहा है? ये mm है कि मीटर है? ये mm है ना, ये m equal to 7, हमारी सारी यूनिट्स mm में आ रही है ना। तो मॉड्यूल हमारा 7 mm है, 10 into m, 10 into 7। ये m का मतलब मीटर नहीं है, m का मतलब मॉड्यूल है। ठीक है, m का मतलब मॉड्यूल है, तो m की वैल्यू 7 है, तो 10 into 7 is 70 mm। कैसे क्लियर होगा, है ना। m मतलब मीटर नहीं है, m मतलब मॉड्यूल। तो चलिए अब हम जरा सा चेक करते हैं। तो चेक फॉर डिजाइन, ये लास्ट है बिल्कुल, इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। सो चेक फॉर डिजाइन में क्या चेक करना है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेक करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? बीम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पी इफेक्टिव, ये तो होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? बीम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पी इफेक्टिव। ठीक है, अब बीम स्ट्रेंथ हमारी कितनी है बताओ?
बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला MB सिग्मा B बाई P फैक्टर का फॉर्मूला PT CS बाई CB। अब M की वैल्यू 7, अब तो डाटा पता है ना, अब तो हमें डाटा मालूम है। B की वैल्यू कितनी है देखो 70 सिग्मा B की वैल्यू कितनी है, किसके लिए लोगे, पिनियन के लिए, गियर के लिए, गियर के लिए, तो गियर ही तो डिजाइन किया ना, तो चेक भी गियर को करेंगे, पिनियन तो ऑलरेडी सेफ है ही है, तो स्ट्रॉन्गर है। तो सिग्मा B की वैल्यू 2 कितनी आएगी, 200/3। टूथ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 0.408 होल डिवाइडेड बाय, है ना। ये CB ऊपर पहुंच जाएगा, PT। अब बताओ PT कितना आएगा, हाँ PT, हाँ देखो ट्वाइस एंटी बाई डी, ट्वाइस एंटी बाई डी से निकाल सकते हो, या फिर वो अपॉन m वाले से भी निकाल सकते हो। तो m की वैल्यू 7 रख दो वहां पे, 52.09। हाँ वहां पे रख दो, तो कितना आ रहा है PT, 5292.09, ये हमारा PT हो गया। CS हमारा 1.5 ये सही है। अब वेलोसिटी फैक्टर की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, पहले हमारी 0.375 से चले थे हम, लेकिन ये बदल जाएगी, है ना, ये बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि अब हम एक्चुअल वेलोसिटी से चेक करेंगे ना, पहले तो हमने 5 मीटर पर सेकंड से चेक किया, अब हम एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पाई dn/60 से। तो एक्चुअल वेलोसिटी देखो हमारी हो जाएगी पाई d1n1/60, है ना। तो पाई d1, अब d1 हमारा कितना है 140, इसको तो गियर से निकाल लो चाहे पिनियन से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 140, n1 हमारा कितना था 1440, इसको पिनियन से निकालना बेटर है, क्योंकि फिर नहीं तो हमें आरपीएम भी निकालनी पड़ेगी गियर की, है ना। तो 1440 डिवाइड बाय 60, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, वेलोसिटी कितनी आ रही है। हमने 5 अज्यूम करी थी, लेकिन एक्चुअल कितनी आ रही है, हम्म 10,555 10,555 555.75। ये मिलीमीटर पर सेकंड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना हो गया 10.55, यस पर सर। सेकंड। हमने 5 मीटर पर सेकंड अज्यूम करी थी ना। ध्यान रखना, जो वेलोसिटी फैक्टर के फॉर्मूले हैं उनमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से बने हुए हैं, तो ये हमारी मिलीमीटर पर सेकंड में आई है, इसको हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये 10.55 मीटर पर सेकंड हो गई। देखो कितना अंतर आ गया, कहां 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और अब 10.55 हो गई है ना। इसलिए डिजाइन को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको चेंज होने से वेलोसिटी फैक्टर में फर्क पड़ेगा। हाँ तो चलिए वेलोसिटी फैक्टर निकाल लीजिए, एग्जैक्ट वेलोसिटी फैक्टर CV। तो CV इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है बताओ, 10 से ऊपर के लिए क्या फॉर्मूला है। अब डाटा बुक देखो कि 10 से ऊपर के लिए क्या फॉर्मूला है, वो चेक करो। 3/3+ की जरूरी नहीं है कि यही स्टिल एग्जिस्ट करेगा, 10 से ऊपर के लिए बदल जाएगा फॉर्मूला ही बदल जाएगा। 6/6 plus V। वेरी गुड, फॉर्मूला ही बदल गया। तो 6/6 plus V वेलोसिटी बदल गई है 10.55। चलिए बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व करिए इसको, वेलोसिटी फैक्टर 0.36। तो पहले 0.375 था, अब केवल 0.36 है ना। चलिए इस वैल्यू को यहां रख दीजिए 0.36, सॉल्व इट, कितने आ रही है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यदि 1.5 से ज्यादा आ जाए तो डिजाइन सेफ, अन्यथा डिजाइन हैज टू बी मॉडिफाइड। और मॉडिफाई करने के कई सारे तरीके हैं, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ, है ना, और यू कैन गो फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द मॉड्यूल। अभी हमारा 7 mm आया ना, तो 7 mm की जगह हम अगली वैल्यू पे जाके चेक कर सकते हैं, है ना। सो मेनी मेथड्स फॉर द मॉडिफिकेशन। So I think this question is now about to end. कितनी वैल्यू आ रही है
1.5 से ज्यादा होना चाहिए, 1.501 भी चलेगा। 4.66 1 4.6 नहीं इतना नहीं आएगा, इतना थोड़ी पड़ जाएगा। 0.51 हाँ कितना आ रहा है? 0.51 0.51। यस सर। नहीं कुछ कैलकुलेशन गलती कर रहे हैं आप। ये तो अनसेफ हो गया अपना। हाँ 1.51 1.51 इज करेक्ट है ना, 1.51 एक बार क्रॉस चेक करें सर। यही तो बता रहे हैं सर। हाँ 1.51 इज करेक्ट, मैंने सिर्फ शायद 0.51 सुन लिया था है ना। 1.51 इज ओके, सो इट इज मोर देन 1.5 है ना, मतलब 1.5 के बराबर आ ही रहा है। सो सेफ है सर ये। सो हम अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे द डिजाइन इज सेफ, द डिजाइन इज सैटिस्फैक्टरी एंड सेफ। हो गया सर। अब क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट। सो बाय दिस क्वेश्चन बेसिकली मेरा इस क्वेश्चन को लेने का मतलब यही था कि जस्ट वी शुड गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ डिजाइन ना। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है कम से कम आप अटेम्प्ट कर पाएंगे है ना। इसी तरह से अटेम्प्ट करना है आपको। सबसे पहले वीकर फाइंड करना है, वीकर के बाद मॉड्यूल फाइंड करना है कंडीशन लगा करके ल्यूइस इक्वेशन से। फिर मॉड्यूल को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद डायमेंशन ऑफ द गियर्स निकालनी है और फिर डिजाइन को चेक करना है। और इस पूरी प्रोसेस में कई सारे अजम्पशन इन्वॉल्व है ना। जैसे हमने वेलोसिटी को अज्यूम कर लिया, तो अजम्पशंस लेने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं रखनी है ना। बी रेडी फॉर टेकिंग द अजम्पशन है ना। कभी कभी डिजाइन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां पे अजम्पशन लेने ही होते हैं है ना। तो हमको डिजाइन को रोकना नहीं है कि हम कैसे करें। यू टेक सम अजम्पशन, जो लॉजिकल अजम्पशन है उनको आप लेके आगे बढ़िए। और तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक पूरा मतलब एक तरह का फीडबैक मिल गया कि हमें गियर प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये गियर का बीम स्ट्रेंथ वाला पार्ट कंप्लीट है, बेंडिंग फेल्योर वाला। अब गियर दो तरह से फेल होते हैं, एक तो बेंडिंग फेल्योर है ना, जो कि अभी हमने देखा। तो अभी हमारा गियर किस में सेफ है? बेंडिंग में सेफ है, बेंडिंग में सेफ हो गया है ना। लेकिन गियर दूसरे तरीके से फेल होते हैं। The pinion teeth strikes over the gear teeth. There is a contact stress, so there is a pitting phenomenon. है ना, गियर की सरफेस, टूथ की सरफेस पर गड्ढे आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, pitting phenomena. And that pitting phenomena is controlled by the surface endurance strength. वहां पे surface endurance strength की प्रॉपर्टी काम में आती है। तो नेक्स्ट क्लास में we will take the design of the spur gear against the wear failure, है ना। The bending failure we have completed. Okay, thank you. सर